Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ईनाडू ग्रुप्स के सरबरा व पद्म विभूषण रामोजी राव के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। तेलुगु प्रेस आइकॉन ईनाडू ग्रुप्स के सरबरा व पद्म विभूषण रामोजी राव एक अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी मौत तेलुगु प्रेस, मीडिया और कारोबारी शोबों का नुकसान है। रामोजी राव के सर तेलुगु सहाफत की साख बनाने और तेलुगु मीडिया के शोबे में एक नए रुझान पैदा करने का सहरा चाहता है। वज़ीर आला ने रामोजी राव को एक ऐसे शख्स के तौर पर सराहा जिसने कौमी सतह पर तेलुगु अवाम की शान को बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि रामोजी राव एक ऐसे शख्स है जिन्होंने इस शोबे की इक़्तिदार और साख को बहुत अहमियत दी है। रेवंत रेड्डी ने रामोजी राव की कमी तेलुगु मीडिया सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा नुकसान करार दिया है। हुकूमत तेलंगाना ने रामोजी राव की आखिरी रसूमात तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ अदा करने का फैसला किया है। రామోజీరావు గారు దేశ రాజకీయాలలో పత్రికా రంగంలో ప్రసార రంగంలో ఆద్యుడు ఈ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలబడి ప్రతిపక్ష పాత్ర పత్రికలు ప్రసార సాధనాలు పోషిస్తాయని నిరూపించిన వాడు వ్యాపారంలో కానీ ప్రజా సేవలో కానీ ప్రజా సమస్యల్ని లేవనెత్తి పాలకుల నుంచి ప్రజలకు మేలు జరిగే విధంగా పోరాటం చేసిన వ్యక్తి రామోజీరావు గారు. వ్యక్తిగతంగా రామోజీరావు గారు వారి కుటుంబంతో నాకు చాలా సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి. వారి మరణం చాలా బాధాకరం. వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢమైన సానుభూతిని తెలియజేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రామోజీరావు గారి అంత్యక్రియలను అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. రామోజీరావు గారు చనిపోవడం అనేది ఒక తీరని లోటు. తెలుగు రాష్ట్రాలకే కాదు ఈ దేశంలో పత్రికా రంగానికి ఎనలేని సేవలు అందించిన రామోజీరావు గారి మరణం అనేది ఒక దురదృష్టకరమైన సందర్భము. వారి కుటుంబానికి అండగా నిలబడి వారి కుటుంబానికి సానుభూతి తెలియజేసి అధికారిక లాంఛనాలతో రామోజీరావు గారి యొక్క అంత్యక్రియలను పూర్తి చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని ఏర్పాట్లను చేయడం జరిగింది. तेलुगुदेशम पार्टी के सरबरा नारा चंद्रबाबू नायडू और उनकी अहलिया ने मुमताज सनतकार वो ईनाडू ग्रुप्स के सरबरा रामोजी राव के जसद खाकी को खिराज अकीदत पेश किया। रामोजी फिल्म सिटी के बानी रामोजी राव का आज सुबह हैदराबाद के एक अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल हो गया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला का हलफ लेने वाले टीडीपी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू और उनकी अहलिया ने रामोजी राव की आखिरी रसूमात के मौके पर उनकी जसद खाकी को खिराज अकीदत पेश करते हुए अपराधी खानदान से ताज़ियत की। नारा चंद्रबाबू ने रामोजी की मौत को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि उन्होंने मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए अनथक काम किया। वो एक फर्द नहीं बल्कि अपने आप में एक सिस्टम थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बेशुमार खिदमत अंजाम दी थी। అదే మరిగా ప్రజా చైతన్యాన్ని మనం చూస్తే ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఏ ఇంట్లో కూడా నిద్ర లేస్తానే ఈనాడు చదివితే తప్ప బయట వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు. అంటే ఆ విధంగా ప్రజల్ని చైతన్యవంతులు చేయడానికి కానీ విజ్ఞానవంతులు చేయడానికి కానీ ఆయన నిత్యం సాధన చేశాడు. ఆయన ఏ పని చేసినా కూడా నేను మొదటి నుంచి కూడా చూశాను, రాజీ లేదు. 40 ఏళ్ళుగా నేను ఆయనతో కలిసి ఉన్నప్పటికి కూడా ఆయన పరిచయం ఉన్నప్పుడు కూడా ఏ రోజు కూడా ఆయన ఒకటే చెప్పేవాడు, మీరు ఏమి చెప్పినా నేను మాత్రం ధర్మం ప్రకారమే పనిచేస్తాను, విధి నిర్వహిస్తాను తప్ప నేను ఎల్లప్పుడూ ప్రజాపక్షానే ఉంటానని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పిన వ్యక్తి రామోజీరావు గారు. అంతేకాకుండా నిన్న చనిపోయే వరకు ఆయనకు ఒకటే కోరిక, నా కోరిక అంతా కూడా నేను అనునిత్యం పనిచేసి
పని చేస్తూ పనిలో చనిపోగలిగితే అది నాకు ఆనందంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు నేను చేసే ప్రతి నిమిషం నేను బ్రతుకున్నంత వరకు ప్రజల కోసం పనిచేయాలి, పని చేస్తూనే ఉండాలి. तेलुगुदेशम पार्टी के चीफ नारा चंद्रबाबू नायडू की हलफबर्दारी तकरीब की तैयारियां जारी हैं। वो 12 जून को आंध्र प्रदेश के वजीर आला का हलफ लेंगे। चंद्रबाबू नायडू की हलफबर्दारी तकरीब गनवरम एयरपोर्ट के करीब कीसरापल्ली IT पार्क में मुनक्किद होगी। विजयवाड़ा जिला SP और कलेक्टर ने हलफबर्दारी की तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि हलफबर्दारी तकरीब के लिए सामान भी पहुंच गया है। ये भी याद रहे कि हलफबर्दारी तकरीब में मोदी को मदऊ किए जाने की इतलात मिली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी लीडर राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज को मंजूरी देते हुए राहुल गांधी से लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा संभालने की दरखास्त की है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने हफ्ते को वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाने की करारदाद को मंजूर किया है और उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी इस तजवीज़ को कबूल करेंगे। वर्किंग कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर राहुल गांधी से लोकसभा में अपोजिशन लीडर का ओहदा संभालने की भी दरखास्त की है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि राहुल गांधी इसके लिए सबसे मौजूद शख्स है और वो पार्टी के मसाइल को पार्लियामेंट में मजबूती से उठाने और पार्टी की क़यादत करने के लिए एक बेहतरीन लीडर हैं। CWC की जानिब से की गई दरख्वास्त पर राहुल गांधी ने कहा है कि वो बहुत जल्द इस सिलसिले में कोई फैसला करेंगे। CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. Everybody was unanimous that Rahul ji should take leader of the opposition position in the Lok Sabha, because we already told during this election we raised so many issues, burning issues, unemployment, price rise, Agniveer like issues, women issues, social justice issues. So these issues has to be continued in a greater manner inside the parliament also. Rahul ji is the best person to lead this campaign inside the parliament. This is what the CWC's view. Therefore, I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect Constitution also, should be safe under the leadership of Rahul Gandhi ji as a leader of opposition. This is what the CWC resolution. शहर हैदराबाद में 8 और 9 जून को दमा के इलाज के लिए मछली में दी जाने वाली दवा के हुसूल के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए। तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों और मुल्क के दीगर मकामात से दमा के मरीज हर साल जून के महीने में सांस के मसाइल से निजात पाने की उम्मीद लेकर मछली में दी जाने वाली दवा के लिए शहर हैदराबाद आते हैं। 8 और 9 जून को नामपल्ली नुमाइश मैदान में मुनक़िद मछली प्रसादम की तकसीम के लिए 32 काउंटर्स लगाए गए हैं। याद रहे कि बथनी गौड़ खानदान के अफराद मानसून के आगाज पर दमे की दवा मुफ्त तकसीम करते हैं और हर साल 500 किलो से ज्यादा मछलियों में दमा की दवा दी जाती है। दमे के मरीज को मरल नामी जिंदा मछली को जड़ी बूटियों के पेस्ट के साथ निगलना होता है। इस दवा के बारे में ये दावा किया जाता है कि लगातार 3 साल तक अगर ये दवाई ली जाए तो राहत मिलती है और ऐसे अफराद जो सब्जी खौर हैं उन्हें गुड़ में दमा की दवा दी जाती है। बथनी खानदान का दावा है कि वो गुज़िश्ता 178 सालों से ये दवा मुफ्त तकसीम कर रहा है। जड़ी बूटियों की दवा का
ये खुफिया फार्मूला उनके आबा व अजदाद को 1845 में एक संत ने दिया था और दवा मुफ्त फराहम करने का पाबंद किया था। नुमाइश मैदान में 2 दिन तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। भारत राष्ट्र समिति के एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने रियासती वजीर पूनम प्रभाकर को काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा किया है। पी कौशिक रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि वजीर पूनम प्रभाकर लॉरी मालिकान से 50 लाख रुपए वसूल कर रहे हैं और अब तक 100 करोड़ रुपए हासिल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि सामान के भारी बोझ को लेकर लॉरियां बगैर वे बिल के नकलो हमल कर रही हैं। रामागंडम एनटीपीसी से हुजूराबाद खम्मम तक रोजाना 30 लारियां भारी सामान ले जा रही हैं। पी कौशिक रेड्डी ने कहा है कि वो वजीर पूनम प्रभाकर को फौरी तौर पर काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा करते हैं। తెలంగాణ ప్రజలు మొత్తం కూడా ఒకటే విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ లారీలు ఓవర్లోడ్ పోతా ఉన్నాయి. ఇవి వే బిల్లు లేకుండా ఒక లారీ పోవచ్చా? వితౌట్ వే బిల్స్ లారీ పోతున్నాయి అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి. అది ఎన్ని టన్నులు ఉన్నాయంటే 75-80 టన్నులు ఉన్నాయా, 100 టన్నులు ఉన్నాయా మాకు తెలియదు. ఎందుకంటే వే బ్రిడ్జ్ చూపిస్తలేదు. ఇది 101% ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ గారు పొన్నం ప్రభాకర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు, ట్రాన్స్పోర్ట్ అధికారులు మొత్తం ఎన్టీపీసీ నుంచి తీసుకొని ఖమ్మం వరకు అందరూ అధికారులు సహకరిస్తూ ఇవన్నీ తీసుకుపోతున్నారు. కాబట్టి ఇది 100 కోట్ల రూపాయల స్కాము. డైలీ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ గారికి 50 లక్షల రూపాయలు దీని మీద అందుతున్నాయని చెప్పి నేను ఆధారాలతో సహా లైవ్ గా చూపిస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఈ మంత్రి గారిని బర్తరఫ్ చేయాలని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. డైలీ పోయే లారీలు దాదాపు 200 నుంచి 300 మధ్యలో ఎవ్రీ డే లారీలు పోతున్నాయి. ఒక్క లారీ ఖర్చు 20 నుంచి 25 వేల రూపాయలు అవుతుంది. లీగల్ గా వే బ్రిడ్జ్ వేసుకొని పోతే 32 టన్నులు మాత్రమే తీసుకొని పోవాలి. వీళ్ళు ఒక 32 టన్నుల డబ్బులు కడుతున్నారు లారీ 25,000, కానీ తీసుకుపోయేది 75 నుంచి 80 టన్నులు. అంటే ఆ మిగతా మీదికున్న డబ్బులు అంటే మిగతా మీది ఉన్న 30,000 నుంచి 40,000 రూపాయలు ఇవి మంత్రి గారికి పోతున్నాయి. ఈ 40,000 రూపాయల నుంచి ఈ 30 నుంచి 40,000 ఇంటూ 250-300 లారీస్ మీరు వేసుకోండి. మీకు డైలీ మంత్రి గారు సంపాదించిన 50 లక్షల లెక్క మీకు దొరికిపోతుంది. చూసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेरे एहतमाम तेलंगाना और कर्नाटक के 99 आज़मीन हज का आखिरी काफिला बजरिए बस चेन्नई एम्बैरेक्शन पॉइंट रवाना हुआ। हज की अदायगी के लिए इस साल तेलंगाना हज कमेटी के जरिए 11,672 आज़मीन की रवानगी अमल में आई है। गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, मोहम्मद फहीमुद्दीन कुरैशी वाइस चेयरमैन वो सदर तिमरीज के अलावा MP अनिल कुमार यादव, हज कमेटी के अरकान तकी आगा मुजीब व दीगर ने आज़मीन हज के आखिरी काफिले की रवानगी के मौके पर हज हाउस में मुनक़िद तक़रीब में शिरकत की और आज़मीन के बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि तेलंगाना और कर्नाटक के 99 आज़मीन वेटिंग लिस्ट के जरिए मुंतखब हुए थे और ये आखिरी काफिला हज हाउस नामपल्ली से AC बसों के जरिए चेन्नई एम्बैरेक्शन पॉइंट के लिए रवाना हुआ। आखिरी काफिला 9 जून की दोपहर जिद्दा के लिए रवाना होगा और शाम तक जिद्दा पहुंच जाएगा। हमारा आखिरी काफिला तो जा चुका था, वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई, उसके अंदर फिर हमें खिदमत करने का मौका मिला। आज इस बस में 99 आज़मीन हज यहाँ से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि पूरी फ्लाइट नहीं होने की वजह से आधी फ्लाइट चेन्नई में थी, तो यहाँ से हम चेन्नई उनको अटैच कर रहे हैं। वहाँ से वो लोग सीधा सऊदी को जिद्दा को पहुँचेंगे। और खास बात मैं कहना चाहता हूँ, इसके अंदर एक वो शख्स है जो जिसका वीज़ा कैंसिल हो गया था, जिनको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था पैसे नहीं देने के तौर पर, तो अहले खैर हजरात ने उनको मदद किया। हमारे ये साहब लेटर लिखकर वो जोड़े का वीज़ा मंगाए, वो लोग भी इसके अंदर सवार है। और एक शख्स के वहाँ पर बॉन्ड को मार लगा था,
तो हज कमेटी अपने खर्चे से उनको वापस बुलाए, उनके जगह पे उनके भाई को वहाँ पर रवाना कर दिया गया। और एक निजामाबाद के हाजी का वहाँ इंतकाल हुआ था, तो उनके जगह उनके मुहर्रम के लिए उनके दूसरे बेटे को यहाँ से आज इस बस में रवाना किया जा रहा है। हम 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। आप लोगों की बात की मैं वजाहत करना चाहता हूँ। स्टेट हज कमेटी का काम कुछ और है, सेंट्रल हज कमेटी का काम कुछ और है, हज मिशन का काम कुछ और है, सऊदी गवर्नमेंट का काम कुछ और है। जैसा कि मीना में जो खेमे लगाते हैं वो सऊदी गवर्नमेंट लगाती है, और वहाँ पर जो बिल्डिंग सिलेक्शन होती है, सीटी ईरानी गए थे हज से 2-3 महीने पहले। बिल्डिंग सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के तहत आता है, वो बिल्डिंग को सेलेक्ट करते हैं। वो वहाँ पर जो यानी जो एयर के जो जैसा कि फ्लाइट्स बुक कराना है वो भी सेंट्रल हज कमेटी करती है। वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी जो है सेंट्रल हज कमेटी करती है, यानी माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट करता है। तो स्टेट हज कमेटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं रहता। फिर भी हमारे खादिमुल हुज्जाज नाज़रीन के साथ है। हर साल 300 आदमी पे एक खादिमुल हुज्जाज हुआ करता था, इस साल 200 आदमी पर एक खादिमुल हुज्जाज है। वो वहाँ पर उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई तकलीफ हो तो सऊदी गवर्नमेंट से हो या CG हज से हो या सेंट्रल हज कमेटी से हो, वो लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं ताकि हमारे आदमीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना आए। और आज जो हाजियाँ जा रहे हैं वो सिर्फ तेलंगाना के नहीं, सिर्फ तेलंगाना की हाजियाँ हैं। जुमला कितने हैं सब? दुनिया में हाजियाँ यहाँ से आज जा रहे हैं। और इंतजाम के बारे में कुछ लोगों को खदशात है, तो आप क्या आप देखिए, मैं आपको अभी फिर से दोबारा बता रहा हूँ। हज जो है 3-4 यानी जैसे सेंट्रल हज कमेटी, सऊदी गवर्नमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री और हज कमेटी, ये सबको मिलकर होता है। यहाँ हमारा काम कुछ और है और उनका काम कुछ और है। हाजी पहुंच चुके हैं वहाँ पे, इबादतों में भी है, जी करेंगे तो उनके हालात से आप वाकिफ हैं? बराबर वाकिफ है। वहाँ हमारा जो खादिमुल हुज्जाज है वो हमें वाकिफ करवा। जैसे सुबह से 2 की शुगर बढ़ गई थी, उनको कौन से दवाखाने में, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया तमाम खादिमुल हुज्जाज का। कोई भी पेशेंट को कोई भी दवाखाना ले जा रहा है तो उस ग्रुप में डाल रहा है कि ऐसा हम क्या बोलते दवाखाने में शरीक करें, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज। हत्ता कि हमारे पास जो जमजम पिलाया जा रहा है, जो पानी भी सर्व किया जा रहा है, उसके भी वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं। सुने, इंशाल्लाह वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। के दौरान कुछ ऐसे हादसा हो तो अवाम आपसे आगे नुमाइंदगी यहाँ पर हम एक कंट्रोल रूम रखे हैं जिसके अंदर टेलीफोन नंबर से हम खादिमुल हुज्जाज से रब्ता अदा करके आप लोगों को इत्तला देंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत तेलंगाना ने बकरीद और ईद गदीर को आम तातीलात का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत ने आने वाले मुस्लिम त्योहारों के लिए आम तातीलात को लेकर पाई जा रही तमाम उलझनों को दूर किया है। एक सरकारी ऐलान में हुकूमत ने बकरीद और ईद गदीर दोनों की तातीलात का ऐलान किया है। बकरीद पीर 17 जून को मनाई जाएगी और ईद गदीर 25 जून को मनाई जाएगी। हुकूमत ने 17 जून और 25 जून 2 दिन भी आम तातील का ऐलान किया है। रियासती वजीर सियाहत व सखाफत जूपल्ली कृष्णा राव ने नागार्जुना सागर हिल कॉलोनी में बुद्धवनम के तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और सयाहों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने MLA जयवीर रेड्डी के साथ नागार्जुना सागर हिल कॉलोनी में बुद्धवनम का दौरा किया। वहां पहुंचने पर OST सुदन रेड्डी, बुद्धिस्ट तज्जियाकार डॉक्टर इमानी शिवा नागी रेड्डी व दीगर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर वजीर ने बुद्धवनम में गुलहाए अकीदत पेश किए। बादजा महास्तूपा, स्तूपावनम और ध्यानवनम का दौरा किया। वजीर ने मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और महकमे सियाहत के अफसरान के साथ तरक्याती कामों का
जायजा लेते हुए सयाहों को हर किस्म की सहूलियात मुहैया करवाने की हिदायत भी जारी की। मिर्यालगुड़ा के एमएलए बी लक्ष्मण रेड्डी, नलगुंडा के साबिक नायब सदर करनाई लिंगारेड्डी व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। మళ్ళీ రాజకీయాలు అయితే గడిచిన ప్రభుత్వం 40,000 కోట్ల డ్యూస్ ఉండినాయి. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి క్లియర్ చేసుకుంటూ వస్తాను. అవన్నీ కూడా పూర్తి చేస్తూ దీన్ని డెఫినెట్గా వచ్చేటువంటి అనతి కాలంలోనే గొప్ప పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే కార్యక్రమం చేస్తాం. సార్ ఇంకోటి సార్, దీనికి సెక్యూరిటీ మెజర్స్ అంతా లేనట్టుగా అన్ని నేను ముందే చెప్పిన సెక్యూరిటీ, వాటర్, టాయిలెట్స్, హోటల్స్, టూరిజం, ఇవన్నీ బోటింగ్ రకరకాలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిపై దృష్టి పెట్టి పెద్ద ఎత్తున తెచ్చేసి ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇందులో అవసరమైతే ప్రైవేటు వాళ్ళు కూడా, ఒక భూటాన్ వాళ్ళు మీరు మాకు ల్యాండ్ ఇవ్వండి, మేమే మొత్తం ఏర్పాటు చేస్తాం అంటే, ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు, స్పెషల్లీ ఏషియన్ కంట్రీస్ వచ్చేటువంటి వాళ్ళకు అవసరం వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు. వాళ్ళకు ఉండాలంటే ఒక స్టార్ హోటల్స్ కావాలి, ఆ స్థాయిలో ఉండాలి, ఆ ఏర్పాట్లు లేవు. సో అవన్నీ కూడా టోటల్గా చర్చించి, అధికారులు చర్చించి, సంస్థలతో చర్చించి ఏం చేయాలో అన్ని కార్యక్రమం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. सुबोध कुमार सिंह डायरेक्टर एनटीए ने वाज़ेह किया है कि नीट इम्तिहान की सालमियत पर मुल्क भर में कोई समझौता नहीं किया गया। नीट इम्तिहान के नताइज की इजराई में बेकायदगियां पाई जाने वाली शिकायतों के चलते सुबोध कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि एक कमेटी ने तमाम मराकज़ और सीसीटीवी की तफसीलात का जायजा लिया है और ये पाया है कि मराकज़ पर वक्त ज़ाया हुआ है, लिहाजा तलबा के निशानात में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायतों का अजाला करते हुए उसी हिसाब से नंबरात में इजाफा किया जाएगा। एनटीए डायरेक्टर ने कहा है कि स्केलिंग फार्मूले के नतीजे में तलबा के स्कोर पर फर्क पड़ा है। 4,750 मराकज़ में से सिर्फ 6 मराकज़ पर ही ये मसला पाया गया। नताइज का भी शफाफ तज्जिया किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि नीट इम्तिहान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया गया है। So the issues at about 6 centers that affecting about 1,600 candidates that because of the wrong distribution of question paper and issues there 1 or 2 candidates, 2-3 candidates got the torn OMR and they like a list key they got less time because of the center superintendents. They should have given the 3 hours 20 minutes. Our instructions are if any exam is started late, like in place of 2 o'clock, if it starts 2:30, so the exam should end not at 5:20, it should end at 5:50. And this has happened at most of the centers, but at some centers the exam was conducted in such a way that they could not get the enough time. So the candidates, the concerned candidates, they went to honorable high courts and given the representations that petition that they got less time, say either they should be retest or they should be compensated for time. बिदर लोकसभा हलके से मुंतखब हुए कांग्रेस एमपी सागर खंडारे ने राहुल गांधी से मुलाकात की। 26 साला सागर खंडारे ने कांग्रेस के टिकट पर पहली मर्तबा बिदर लोकसभा हलके से इंतखाबात में हिस्सा लिया और यूनियन मिनिस्टर भगवंत खोजा को 1,29,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की। खंडारे को 6,66,317 वोट मिले हैं। सबसे कम उम्र अरकान पार्लियामेंट में शुमार किए जाने वाले सागर खंडारे ने राहुल गांधी से मुलाकात की। आपको बता दें कि साल 2019 में यूनियन मिनिस्टर भगवंत खोबा ने सागर खंडारे के वालिद ईश्वर खंडारे को शिकस्त दी थी। ताहम साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में ईश्वर खंडारे के बेटे सागर खंडारे ने यूनियन मिनिस्टर को हरा दिया। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अराजी और लेन देन के तनाजे के चलते हिंदू दहशतगर्दों ने लोहे की सलाखों से
मारकर मौलाना फारूक का कत्ल कर दिया। जराये ने बताया कि प्रतापगढ़ जिला मरकज के 30 किलोमीटर दूर पर थाना जेठवाड़ा इलाके के सोनपुर गांव में हफ्ते की सुबह मौलाना फारूक की खून में नतपत लाश पाई गई है। वो एक मदरसा चलाया करते थे। इस कत्ल के बाद इलाके में इश्तियाल व कशीदगी फैल गई है। मुश्तइल अफराद लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने नहीं दे रहे हैं। थाना जेठवाड़ा SHO धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मौलाना फारूक ने गांव के चंद्रमणि तिवारी की जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन चंद्रमणि ने जमीन उन्हें न देकर किसी और को फरोख्त कर दी और जब वो पैसों के लिए सुबह चंद्रमणि के घर गए तो वहां लोगों ने उनके सर पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिसके सबब उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला पर जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिटेंडेंट व दीगर आला अफसरान मौके पर मौजूद हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहवील में लेने की कोशिशें की जा रही हैं। मुकामी अपराध ने खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। एक आदमी ले दीजिए, पब्लिक ये जाए कि प्रधान जी के भाग्य गए साथ में पुलिस अपना काम करेगा। एक आदमी पुलिस के खाते जा अंदर, एक आदमी अंदर जा, एक आदमी पहले जा, अरे चला जा। हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी। 14 परवाजों के जरिए 4027 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए। फरीज़ा हज की तकमील के लिए पहुंचे लाखों फर्जंदान तौहीद ने हरम शरीफ में नमाज जुमा अदा की। हिंदुस्तान समेत दीगर ममालिक से भी आज़मीन सऊदी अरब पहुंच रहे हैं और हिंदुस्तान से अब तक 421 परवाजों के जरिए 1,24,918 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा में 1,23,957 और मदीना मुनव्वरा में सिर्फ 961 आज़मीन मौजूद हैं। दूसरी जानिब मुशायरा मुक़द्दसा में हज की तैयारियां उरूज पर हैं। नमाज जुमा के मौके पर ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर नजर रखने के लिए कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम और डिप्टी सेक्रेटरी फहद अहमद खान अपनी टीम के साथ बस पॉइंट पर मौजूद थे। मेडिकल टीम और वॉलंटियर्स भी उनके हमरा मौजूद थी और आज़मीन की खिदमत में मसरूफ थी। आज़मीन हज को वजारत हज की जानिब से इस साल नुसुक कार्ड्स दिए जा रहे हैं। उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो नुसुक कार्ड की हिफाजत करें और बगैर कार्ड के बाहर ना निकलें। मक्का मुकर्रमा का दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस तथा 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.